Good morning, students. I hope you all are good, healthy, and today we are going to start second chapter from your civics book, that is diversity and discrimination. So before starting this particular chapter, let's recap what we have understood in chapter 1. In chapter 1, we have talked about diversity. We have tried to understand what is the meaning of diversity and how our country is a good example of unity in diversity. So, as we all know, what is diversity? Diversity means like what are the different forms of a thing, and in India we have various kind of example. We have read that India is a country of many diversities. बहुत चीज़ों में बहुत ही विविधता पाई जाती है. विविधता is the exact meaning in the word for this word diversity. मतलब बहुत विविधता है यहाँ पर भाषा में. We have different kind of food, we celebrate different festivals, we practice different religions, languages are different. So India is like a country which is having many diversities. So in last chapter we have tried to understand these diversities and the reasons of these diversities, and if I recap the reasons, the main reason we can put that it is like because of the history or geography of that particular place. किसी भी जगह की जो हिस्ट्री होती है, वहाँ का जो कल्चर रहा है, वहाँ के जो नॉर्म्स रहे हैं, वो बहुत इफेक्ट करते हैं, या वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डाइवर्सिटी पैदा करने में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है. वी हैव अंडरस्टूड दैट द पीपल लिविंग इन अ कंट्री बट विच आर इन डिफरेंट स्टेट, लाइक इफ समबडी इज इन राजस्थान और समबडी इज इन केरला, देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस in their way of eating, their way of dressing, their language. So there is diversity because of the history or geographical condition of that particular state or region. So and we have also understand that India is a good example where it is a democratic country where we see so many diversity, and yet India's unity is being intact. Like though the Britishers, they tried to use the policy of divide and rule, but that at one point of time that people also rejected, and they showed their unity, and that's how we got our independence. Though you will be reading about the struggle of independence in your higher classes. So now coming on the current chapter, diversity and discrimination, we have taken the part diversity होती क्या है, विविधता होती क्या है, ये हमने पहले चैप्टर में भी समझा और अभी रिकैप में भी हमने उसको रिवाइव किया. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, किस कारण से होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. और हम ऐसे इस सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करें, एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को जो है रिलेट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उन इनइक्वालिटीज से जो हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही हैं. अगेन द वे विल बी लाइक यू विल बी रीडिंग from your textbook, you will be listening what I am trying to explain, but your NCERT next note, this textbook and your pencil should be along with you so that we can mark up the important portion when we come across them while going through the chapter. So let's start this with reading. First topic in your book is difference and prejudice. There are many things that make us what we are: how we live, the languages we speak, what we eat, what we wear, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. As I told you कि हिस्ट्री और जोग्राफी जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, वहाँ के नेटिव्स के पूरा लाइफस्टाइल को डिफाइन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement.
It is, I have jotted down the points on the board also, but let's read it from the book. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. 8 मेजर रिलीजन्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो सभी के सभी हमारे देश की जो जनता है उनके द्वारा अपनाए जाते हैं. यहाँ पर आपको वो 8 मेजर रिलीजन्स के लोग जो हैं उसको पीसफुली प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग. ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर भी कई बार डायलेक्ट चेंज हो जाता है. डिफरेंट स्टेट्स हैं, समझ रहे हैं. लैंग्वेजेस अगर हम स्पेसिफाई करें तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बट 1600 कैसे बोल रहे हैं कि जब हम देयर इज अ सेइंग कि हर 20-20 कोस पे बोली जो है वो बदल जाती है. 20-20 कोस मतलब 20-20 किलोमीटर्स का जब आप डिफरेंस करते हो तो थोड़ा सा जो एक्सेंट है या जो लोकल स्लैंग है वो चेंज हो जाता है. तो दैट्स वाई वी सम अप दैट देयर आर 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो है आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, बट उसके अलावा भी जो ट्राइबल है, जो लोकल है, देयर अगर हम उसको काउंट करें तो इट विल सम अप समवेयर अराउंड 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. डाइवर्सिटी है, इंडिया एग्जाम्पल है यूनिटी में, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, बट स्टिल एक फीलिंग है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं. डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करते हैं. एक वो फीलिंग कहीं ना कहीं से सीप अप हो जाती है. क्या रीजंस होते हैं उस फीलिंग के सीप अप होने से, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या प्लस और माइनस है, दिस ऑल वी आर गोइंग टू discuss in this chapter, in this video. Though maybe we will be taking this chapter in like half we will cover today and half we will be keeping for the next session. So ये जो डिस्क्रिमिनेशन आता है ये कहाँ से स्वीप होता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ. सपोज आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड इफ आई एम गोइंग समवेयर डाउन साउथ, इफ आई एम when I went I just take an example of my own personal life. When I went to Goa, their culture was different. I am talking very first time when I was in that state. I saw that the people are behaving differently from the way we people do in Delhi. They are doing entirely different. Like here in Delhi, we are very warm-heartedly. We welcome people to our homes. Even they are stranger, we do welcome them to our home. We do, like, we are the perfect host according to me. But when I went over to Goa and when I see people that they don't welcome you on the very first instance, they will just be very formal इस तरह से. Then I saw the difference in their dressing, their eating habits. फिर और वहीं पर घूमते घूमते मुझे एक ऐसा कपल मिला जो कि दिल्ली से बिलोंग करता था. तो एक वो जो जॉय मेरे अंदर आया, सिमिलरली आई फेल्ट कि उनमें भी आया. ओ आप भी दिल्ली से हो, वाओ हम भी दिल्ली से हैं. तो वो एक जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो आती है ना, बीइंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेक्ट, from one particular religion, one particular region or one particular language अगर हम speak कर रहे हैं, तो एक psychologically हमारे में oneness की, belongingness की feeling आ जाती है. That is good. लेकिन अगर वही belongingness की feeling अगर हमें किसी दूसरे के साथ भेदभाव करने पे मजबूर करे या कंपेल करे, हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें या हम सोचे कि ये हमसे अलग है या हमसे इंफीरियर है, then that is wrong. I hope you are understanding this example. What I want to say कि एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग एक पर्टिकुलर सेक्ट, कल्चर या रिलीजन या जेंडर से होने के लिए आएगी. दैट इज ऑब्वियस. बट हाउ वी आर डीलिंग विद दैट फीलिंग, हाउ वी आर लाइक यूजिंग दैट फीलिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट. आर वी आर गेटिंग प्रेजुडाइज? आर वी making the things stereotypes? Are we taking the things stereotypes? That is the big problem. Or
इज इट ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, वो चीज देखनी है। तो आप पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज प्रीजुडाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स, देन यू विल अंडरस्टैंड, देन यू विल बी इन अ मेंटल स्टेट, देन आपको समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेट करना है, नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या हेल्दी वेज हो सकते हैं उसको करने के लिए, क्यों करना है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि लाइक यहाँ पर मैं अपने आप को, लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर, मैं क्यों ये शब्द बोली कि अगर डिस्क्रिमिनेशन रखना भी है। लुक, every country, every culture has their own tradition, their own values, which have to be, I as a person feel that these values have to be preserved so that our generation can be make aware of these things. हमारे जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, हमें इतना लिबरल भी नहीं होना है, मैं ये समझती हूँ। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड लाइक टू हैव योर व्यूज ऑल्सो, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग ऑल्सो। कि मेरा ये मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन या उस सिर्फ उस लेवल तक होना चाहिए जहां हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं विदाउट हैम्परिंग और हार्मिंग अदर ह्यूमन बींग्स। वो चीज ठीक है। अगर हम बिल्कुल ही लिबरल हो जाएंगे, ठीक है कुछ नहीं होता, ये चीज हम सबकी तरह हो जाएंगे, देन हमारी यूनिकनेस, हमारा पर्टिकुलर जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको हम प्रिजर्व कैसे करके रखेंगे। उसको प्रिजर्व करना, उसको सहज के रखना भी हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम लोग का कल्चर जो है पूरा वर्ल्ड सिनेरियो से डिसअपियर ना हो जाए। हमारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें अपने ट्रेडिशन को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत एसेंशियल है। लेकिन स्टीरियोटाइप बनना या हमको एक बहुत ही रिजिड टाइप का नोशन लेना, वो ठीक नहीं है। So let's read it out. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. Obviously, people who are different from us, definitely we will feel strangers. At times, we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. अब ये जो ओपिनियन बनाना है वो कैसा है। सपोज आई एम अ पंजाबी, एंड मुझे क्या लगता है कि पंजाबी लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, यू मस्ट हैव सीन, मैंने बोला कि हम लोग बहुत, मैं मानती हूँ कि हम लोग एक बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाबीज आर द बेस्ट होस्ट। मुझे, मेरे मन में एक ये मतलब एक स्टीरियोटाइप फीलिंग है कि हाँ, पंजाबीज जो हैं वो बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, वो बहुत वार्म होते हैं, बहुत वेलकमिंग होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो ये है। सपोज मैं एक ऐसे इंसान से मिलती हूँ, जैसे मैं एक गोंद से ही मिली, तो मुझे लगा कि शिट यार, ये दीज पीपल आर नॉट दैट वार्मिंग। जैसे रुखे से लोग हैं ना, किसी को अपने घर, कोई आपके घर आया और बाहर दरवाजे पे ही खड़े खड़े बात करके, और इन्होंने बाय तक भी बोल दी, दे डिडंट ऑफर यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मेरे मन में क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी डिफरेंट गोंद के साथ भी मिलूंगी ना, मुझे मन में ये फीलिंग रहेगी, यार ये लोग ना बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं, टू द पॉइंट ही बात करो इनसे। आई एम टॉकिंग कि एक गोंद से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला, तो वो मेरा इम्प्लाई करेगा, मेरा माइंड जो है मुझे वो चीज बताएगा सेकंड के लिए। तो दैट इज व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग। और प्रिजुडाइज, एक नेगेटिव फीलिंग मेरे मन में आई एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए, उसको मैं दूसरे से जब मिल रही हूँ तो पहले ये जो है ये फीलिंग मेरे अंदर है, चाहे मैंने उसके साथ बात करके बाद में उसको डिफरेंट पाया। तो पीपल, जब भी हम मिलते हैं लोगों से, ऑब्वियसली there will be a difference in their attitude, their opinion, their dressing sense, how they look, how they talk, what they eat, how they feel, how they speak. There would be difference in each and every dimension I have just talked about. और ये because of their difference, because they are from different place, because they are having different culture. तो ये चीज रहेगी। अब अगर हम बात करें प्रिजुडाइज की, प्रिजुडाइज मीन्स नेगेटिव फीलिंग, बायस्ड ओपिनियन अबाउट लैंग्वेज, स्किन कलर, जेंडर, क्लास, किसकी वजह से भी ये प्रिजुडाइज जब हम बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव फीलिंग। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी डेली लाइफ से आपको अभी
कोट किया कि मेरा एक गुण के साथ एग्जाम्पल अच्छा नहीं था, या मुझे लगता है कि जो लोग हमारे एरियाज में रहते हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग होते हैं, तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव फीलिंग मेरे मन में बन गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी किसी गुण से मिलती हूँ तो मेरे माइंड में ये फीलिंग आएगी, until and unless I have educated myself to an extent that every person is a different, though they have different culture, though they have different traditions, but फिर भी हो सकता है। मतलब जब तक मैं, मेरे मन में प्रेजुडाइज कब तक रहेगा, जब तक मैं इस लेवल तक अपने आप को मेच्योर नहीं कर लूंगी कि मुझे ये समझ आए कि भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, मुझे उस चीज को नेगेटिव नहीं लेना। तो प्रेजुडाइज तो मेरे मन में बीइंग अ ह्यूमन आया, बीइंग प्रिवेलेंट ट्रेंड की वजह से आया, लेकिन अब आप उस प्रेजुडाइज से कितना इन्फ्लुएंस होते हो, अपने बिहेवियर को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हो, ये आपकी एजुकेशन या आपकी लर्निंग पे, आपकी मेच्योरनेस पे डिपेंड करता है। और इन टॉपिक्स को पढ़ाकर हम क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेवलप, व्हाई वी आर मेकिंग like we are teaching you these things, we are teaching you these things because these are the normal phenomena which happen, which are there in the society. But what we are trying to teach you, we are trying to teach you understand the ill effects of these type of things, and to be smart enough to evaluate कि मुझे कब क्या चीज प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि सारा जो आसपास का, जो मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर है वो मेरी वजह से हारमोनियस रहे। दिस इज द मेन रीजन वाई वी आर टीचिंग यू ऑल दिस थिंग्स। तो प्रेजुडाइज, जैसे मैंने बोला, एक नेगेटिव फीलिंग या बाइस्ड ओपिनियन जब हम किसी की भाषा को लेके, उसके कलर को लेके या उसकी क्लास को लेके बना लेते हैं, वो दैट फीलिंग इज बैड, दैट इज नॉट गुड। लेट्स रीड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 14. लेट्स रीड from the prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. When we think that only one way, particular way is the best. जैसे मैंने बोला ना, we Punjabis are the best host. एक फीलिंग आ गई ना सुपीरियरिटी की मेरे अंदर कि बाकी सब तो इन्फीरियर है। एंड राइट वे टू डू थिंग्स, जो हम कर रहे हैं, जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, वही ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन शायद उनका हिसाब ठीक हो कि स्ट्रेंजर्स के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, स्ट्रेंजर्स को एकदम से अपने घर में वेलकम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लॉजिकली वो भी ठीक हो सकते हैं। रादर आई कैन आई विल से दैट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, इन दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, दे आर मच राइट इन देयर अप्रोच कि आप एकदम से किसी को वेलकम नहीं करो अपने घर में। मे बी द स्ट्रेंजर, यू डोंट नो व्हाट पर्सन दैट स्ट्रेंजर इज, वो भी ठीक हो सकते हैं। ये तो तभी मेरे में सोच आई जब मैंने दूसरी तरह से सोचना शुरू किया, जब मैंने चीजों को पॉजिटिवली लेना शुरू किया। So when we think that only one particular way is the best and right way to do the things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, एक और example आपकी बुक में दिया है, which is very relevant and very important. If we think English is the best language and the other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. Very true. First instance, अगर आप you are good at your spoken English, what will be the people oh wow, she must be very intelligent. She speaks English so well. एक ये इंग्लिश जो लैंग्वेज थी ब्रिटिशर्स की, इसको इतना एक्सपोजर मिला, इसको इतना यूज हुआ। यू नो दैट ब्रिटिशर्स हैव कॉलोनाइज्ड लाइक many parts of the world. Each and every nook and corner of the world was being colonized by them. So their language has been used in all these parts. That's why this language is so hugely practiced. The reason is this. लेकिन जो इंसान सपोज एक हिंदी स्पीकिंग है और उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो हम क्या प्रेजुडाइज करके, ओ शिट, हाउ ही इज टॉकिंग, सॉरी, हाउ ही और शी इज टॉकिंग, शी डोंट नो टू स्पीक इन इंग्लिश, शी कांट बी दैट इंटेलिजेंट। हम प्रीजुडाइज हैं, हम बायस्ड हैं, हम ये नेगेटिव फीलिंग ले रहे हैं, बट द फैक्ट कुड बी शी कैन बी सो मच लर्न कि हम उसके आगे कहीं स्टैंड ही ना करें। सिर्फ एक भाषा बोलने की वजह से लोग आपको सुपीरियर या गुड या बेस्ट या बेटर का जो है वो एक टैग दे देते हैं, जबकि हो सकता है कि मेरी नॉलेज, इफ आई हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज,
और मेरे साथ एक इंसान है जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, मुझे लोग ज्यादा रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आई एम आई इंग्लिश स्पोकन। लेकिन मे बी द फैक्ट इज कि बेसिक नॉलेज जो है, जो नॉलेज है वो उस पर्सन में मुझसे कहीं गुना ज्यादा है और मुझ में नहीं है। तो वो तो जब आप डील करोगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन एक प्रेजुडाइज तो आपने बना लिया ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो हो गया, शी कांट स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स शी इज नॉट अप टू द लेवल, she or he is not up to the level. But the thing is, but the truth can be that she or he is much more learned than I am, right? So ये negative है. We can be prejudiced about many things, people's religions, like we have seen in the case of Ansari couple, कि being from a particular religion they are being discriminated, right? कलर की वजह से भी हो सकता है, द रीजन वी कम फ्रॉम, अरे ये तो नॉर्थ से आए हैं, ये लोग तो कम पढ़े लिखे होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, ऐसा नोशन है। यू नो द स्टेट्स इन नॉर्दर्न एरिया आर टेकन एज बीमारू स्टेट्स। वी हैव दिस नॉर्दर्न स्टेट्स, दिस राजस्थान, दिस यूपी, बिहार, इनको बीमारू, बी फॉर बिहार, ये एक तरह से साउथ के लोग हम लोगों को बीमारू बोलते हैं, बीमारू स्टेट्स। यू विल सर्च ऑन द नेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीमारू स्टेट्स। तो एक प्रेजुडाइज है, एक नेगेटिव फीलिंग है हमसे एसोसिएटेड, आप उसको पढ़िए। तो लोग जो हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज। नेक्स्ट वी हैव टू कवर स्टीरियोटाइप्स, बट आई थिंक वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन. For now, this is what we are supposed to cover. Next, we will be doing what is the meaning of stereotype, how people stereotype the things or the people, and what are the inequalities and discrimination because of this. What are the ill effects this have in on the life of a person, on a nation. We will, on this whole humanity, we will understand all these things in our next lectures. So that is now. Do read your NCERT book, do understand the concept, and whatever your doubt are, be prepared. We will be having a live class after this session today, and I would like to have questions from you regarding your doubts. Okay, bye for now. Take care.